Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Ahead of the vote counting for the Jharkhand Assembly election, Jharkhand BJP President Babulal Marandi expressed confidence in the BJP lead NDA alliance victory. He stated that based on feedback from BJP workers, he believes the alliance will secure more than 51 seats in the Jharkhand Assembly elections. नहीं, पार्टी का दावा ही है कि चूंकि हमारे कार्यकर्ता काम करते रहे पोलिंग बूथ पर, विधानसभा स्तर पर, तो उन लोगों से जो सब हम लोगों ने जानकारी जो एकत्र की, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 51 प्लस सीटें मिलने जा रही है। सर, इस बार देखने को करीब 5 लाख से अधिक महिला वोटर हैं, उन्होंने अधिक मतदान किया है, इसको कैसे देखते हैं सर? ये स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर खास करके मां उन्होंने जो काम किए हैं या कर रहे हैं, तो लोगों को भरोसा है और इस कारण से इस बार महिला ने भी बढ़ चढ़ करके वोट में हिस्सा लिया। लेकिन जेएमएम दावा करे कि मैया सम्मान योजना का इम्पैक्ट है, 2000 उनके खाते में गया, अगले महीने से 25,000 जाने का वादा किया, इस वजह से इतना वोट उपयोग। देखिए, उनके ऊपर तो किसी को कोई भरोसा ही नहीं, विश्वास नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले भी कहा था कि 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्च देंगे, लेकिन दिया नहीं, पूरे 5 साल गुजर गए। अब जब 2-3 महीना से शुरू किया तो सबको पता है कि अगर वो कहते तो वही 2000 शुरू करते, लेकिन कितना 1000 रुपया। जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गोगो दीदी योजना सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया प्रत्येक महीना माँ बहनों के खाते में जाएगी, तो उन्होंने 2500 रुपया दिया। तो कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर, जो खुद को भी विश्वास नहीं, खुद को भी भरोसा नहीं है मनसुख जी को। सर, एक आखिरी सवाल है, अब तक कल जो है तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अगर जैसा आपने दावा किया 50 सीटें आने वाली है, तो चेहरा मुख्यमंत्री कौन होगा सर? हमने बताया कि कल चुनाव परिणाम आ जाता है, विधायक दल मीटिंग करेगी और इसके बाद दल के नेता का चुनाव होगा और आप सब लोगों को बुला करके बता दीजिए। नहीं, पार्टी का दावा। Ahead of the vote counting for Maharashtra election 2024, the state's chief electoral officer S. Chokkalingam praised the Election Commission of India's efforts in ensuring smooth elections. He highlighted that focused attention and precision in the planning, which lead to a significant increase in the voter list since the parliament election. Chokkalingam emphasized the improvements in voting arrangements, especially in Mumbai, where issues had occurred during the previous elections. He thanked the nearly 6 lakh officers and employees for their hard work and expressed gratitude to the voters for their participation. Election Commission of India, under the leadership of Sri Rajiv Kumar ji, gave lot of focus and attention and time for Maharashtra this time. Each and every strategy was conceptualized and implemented with high precision. This resulted in huge number of addition in the voter list also between the parliament election and the current election, as well as the efforts made to make voting easier, especially in place like Mumbai, where we had some problems at the time of parliament election. But this time, as you have seen, everyone praised the arrangements. So much of work has been done. Election Commission really thanks all the voters who came out to vote on that day to ensure that a history is created in the past 30 years and we have increased by 5% more. We really want to thank all of them. At the same time, nearly 6 lakh officers and employees were putting their efforts to welcome the voters and ensure that they vote very easily. So I really thank the entire machinery also for that. Sir, the percentage of women voters also increased, and this is achievement for Maharashtra. What it is? Yes, this is really great, because Election Commission always wants to ensure that everyone who is eligible should be registered, with a special focus on 1, women, 2, new voters, people who are just getting into 18, they should also get enrolled, as well as transgenders, particularly vulnerable tribal groups. These are, and third gender.
So all these people were special focus areas, and I am really happy to say that even during the registration drive, special summary revision between Parliament and the Assembly election, the registration of women was really high, and in the voting also, the percentage has increased. The actual percentage will be out in a short while, but it is true that they came in big numbers to vote. One more question is that the percentage of voting in rural areas is more than the urban areas. What is the what you will say about that? This is, I think, a global phenomenon. Rural areas are voting more than urban. There is some urban apathy which we are trying to tackle through various means. In fact, we did a lot of activities in Mumbai also. But let me put the story straight. That in urban area also the percentage has increased. It is not, it is at the same level, it has increased. But obviously, while the urban area increased, rural area also increased. Election Commission of India, under the leadership of Sri Rajiv Kumar ji, gave lot of focus and attention and time for Maharashtra this time. Each and On exit polls, NCP-SCP leaders Salinde Krasto expressed skepticism, pointing to the inaccuracies of exit polls in the Haryana Assembly elections. He stated that the people of Maharashtra and has already made their decision, noting that in the Lok Sabha elections, the public had supported the Maha Vikas Aghadi and rejected the Mahayuti alliance. Krasto confidently stated that the public continued to support the MVA in the current Assembly elections as well. एग्जिट पोल जो है पिछले बार भी हमने देखा कि हरियाणा में क्या हुआ। तो एग्जिट पोल लोग निकालते हैं, देखिए सबको अपना काम करना है, खुद की रोजी रोटी कमाना है, करने दीजिए, हम देखते सुनते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय लिया है वही होगा। और महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय ले चुकी है। लोकसभा में उन्होंने निर्णय ली थी, उन्होंने हमारा साथ दिया महा विकास अघाड़ी का, उन्होंने महायुति को रिजेक्ट किया है। देखिए 48 में से 31 सीट हमारी आई थी। इस समय भी विधानसभा में महाराष्ट्र की जनता हमारा साथ देंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि महायुति के लोग जो है वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, लेकिन उनकी सेवा नहीं करते। और महा विकास अघाड़ी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये मिलकर उनकी सेवा करेंगे। सर, रणनीति रहेगी आपका जो पोल हुआ होगा उसमें कितनी उम्मीद है, कितने सीट्स आने की? देखिए हम अच्छा ही करेंगे। जैसे कि आज सुबह संजय राउत जी ने भी कहा कि 160 सीट है, उसके ऊपर हमारी संख्या होगी। हम भी वही मानते हैं, अच्छी संख्या रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र की जनता इस बार 65% 65% लोगों ने आकर मतदान किया है, ये अच्छी संख्या है। तो जब देखिए इतिहास गवाह है कि जब भारी संख्या में मतदान होता है तो लोग जो सरकार स्थित है उससे नाराज होते हैं, इसलिए वो बाहर आकर वोट देते हैं और परिवर्तन आता है। तो इस बार भी परिवर्तन होगा, लोगों ने महा विकास अघाड़ी को चुना है और हम सरकार बनाएंगे। सर, मुख्य कोई फैसला हुआ हो तो जैसे कांग्रेस के नाना पटोले साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस लीड करेगी गवर्नमेंट को। देखिए मुख्यमंत्री का जो सवाल है, पहले भी हमने कहा है कि चुनाव होने के बाद, नतीजे आने के बाद हम सब मिलकर बैठकर बात करेंगे और निर्णय लेंगे। देखिए हमारे पास कद्दावर नेता है, अच्छे नेतागण हैं, हम महाराष्ट्र की जनता को एक अच्छा सीएम देंगे। और कांग्रेस भी कहती है तो ठीक है, उनका हक है ना, हर इंसान को हक है अपना कहने का। तो नाना पटोले जी ने जो कहा है वो उनका हक है, अधिकार है, कहने दीजिए। हमारे यहाँ लोकतंत्र के हिसाब से सब लोगों को बात करने की एक अनुमति मिलती है। महायुति भाजपा की तरह नहीं कोई एक ही इंसान बोलता है। तो उन्होंने कहा है मिलकर हम तय करेंगे और एक अच्छी सरकार महाराष्ट्र की जनता को देंगे और एक अच्छा नेतृत्व सीएम के रूप में देंगे। सर, देखिए अम्बेडकर साहब ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि हम जिसकी सरकार बन रही होगी उसको समर्थन देंगे। सर देखिए प्रकाश अम्बेडकर जी ने ट्वीट किया, On being appointed as the Punjab President, Punjab Minister expressed his gratitude, thanking the Almighty of Supremo Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Mann, Sandeep Patak and the entire Political Affairs Committee. He described the appointment as great honor and assured the party leadership that he would work diligently to bring the government's work to the people while also addressing the resolving their issues.
देखिए देखिए सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा का और उसके बाद हमारे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी का, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई भगवंत मान जी का, संगठन इंचार्ज और राज्यसभा एमपी संदीप पाठक जी का और पूरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम मेरे को और मेरे छोटे भाई शहरी कलसी जी एमएलए बटाला को, जो दो पार्टी के सबसे छोटे निमाणे वर्कर हैं, सिपाही हैं अरविंद केजरीवाल जी के, उनको आज पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा हमारी पूरी पार्टी की लीडरशिप को, केजरीवाल साहब को, मान साहब को और पार्टी के हर छोटे बड़े वर्कर को, पदाधिकारी को, कि दिन रात एक करके मेहनत करके जो पार्टी का संगठन का काम होता है कि सरकार के किए हुए काम, जो कि बहुत अच्छे काम मान साहब की अगुवाई में 2.5 साल में पंजाब सरकार ने किया, उनको लोगों तक लेके जाना और लोगों के जो मुद्दे मसले हैं उनको सरकार तक पहुंचाना और उनको हल कराना, ये हमारी जिम्मेवारी होएगी। और अरविंद जी के दिशा निर्देश के ऊपर, उनकी गाइडेंस के साथ भगवंत मान जी की टीम बन के सबको साथ लेके चलेंगे। और मैं समझता हूं कि ऐसा भी बहुत रेयर पाया जाता है किसी पार्टी में कि किसी पार्टी के मुखिया ने खुद अपने आप से जो प्रधानगी पद है उसको छोड़ने की बात की। भगवंत मान जी ने थोड़े दिन पहले ये इच्छा व्यक्त खुद से की थी और उसको मान के केजरीवाल साहब ने और पूरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने हम दोनों भाइयों को, मेरे को और मेरे छोटे भाई शहरी कलसी जी को जिम्मेवारी दी है। और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पूरी लीडरशिप को और हर छोटे बड़े वर्कर को, कार्यकर्ता को, कि उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी अपेक्षाओं पे, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे हम दिन रात एक करके एक टीम बन के उनको पूरा उतरेंगे। संगठन बिखरा हुआ था पंजाब में, तो क्या लगता है आपके आने के बाद वो संगठन की? देखिए ये आपकी गलत ऑब्जर्वेशन है। कोई संगठन ना कभी आम आदमी पार्टी का बिखरा हुआ था और ना ही कभी बिखरेगा। मान साहब की अगुवाई में और संदीप पाठक जी ने संगठन को बड़े अच्छे से पंजाब में संभाला हुआ था। हम भी उसी तरीके पे चलते हुए उसको और मजबूत करेंगे। संगठन दूसरी पार्टी को बिखरा हुआ था और है, हमारा देखिए सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा का और उसके बाद हमारे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी का, पंजाब के Goa Chief Minister Pramod Sawant recently launched 2 new programs aimed at promoting environmental awareness. One of the key initiatives is a workshop dedicated to teaching the public how to properly care for plants. In his address, Sawant congratulated everyone involved in the collaboration and emphasized the importance of such initiatives in encouraging sustainable practices and fostering the deeper connection with nature. These programs are part of the government's ongoing efforts to engage citizens in environmental conservation and education. जी का, संगठन इंचार्ज और राज्यसभा एमपी संदीप पाठक जी का और पूरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम मेरे को और मेरे छोटे भाई शहरी कलसी जी एमएलए बटाला को, जो दो पार्टी के सबसे छोटे निमाणे वर्कर हैं, सिपाही हैं अरविंद केजरीवाल जी के, उनको आज पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा हमारी पूरी पार्टी की लीडरशिप को, केजरीवाल साहब को, मान साहब को और पार्टी के हर छोटे बड़े वर्कर को, पदाधिकारी को, कि दिन रात एक करके मेहनत करके जो पार्टी का संगठन का काम होता है कि सरकार के किए हुए काम, जो कि बहुत अच्छे काम मान साहब की अगुवाई में 2.5 साल में पंजाब सरकार ने किया, उनको लोगों तक लेके जाना और लोगों के जो मुद्दे मसले हैं उनको सरकार तक पहुंचाना और उनको हल कराना,
ये हमारी जिम्मेवारी होएगी और अरविंद जी के दिशा निर्देश के ऊपर उनकी गाइडेंस के साथ भगवंत मान जी की टीम बन के सबको साथ लेके चलेंगे। और मैं समझता हूं कि ऐसा भी बहुत रेयर पाया जाता है किसी पार्टी में कि किसी पार्टी के मुखिया ने खुद अपने आप से जो प्रधानगी पद है उसको छोड़ने की बात की। भगवंत मान जी ने थोड़े दिन पहले ये इच्छा व्यक्त खुद से की थी और उसको मान के केजरीवाल साहब ने और पूरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने हम दोनों भाइयों को, मेरे को और मेरे छोटे भाई शहरी कलसी जी को जिम्मेवारी दी है। और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पूरी लीडरशिप को और हर छोटे बड़े वर्कर को, कार्यकर्ता को कि उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी उपेक्षाओं पे, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे हम दिन रात एक करके एक टीम बन के उनको पूरा उतरेंगे। संगठन बिखरा हुआ था पंजाब में, तो क्या लगता है आपके आने के बाद वो संगठन की? देखिए ये आपकी गलत ऑब्जर्वेशन है। कोई संगठन ना कभी आम आदमी पार्टी का बिखरा हुआ। BJP leader Agnimitra Paul criticized the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, accusing her of prioritizing politics over the development and well-being of the people, especially the minority Muslim community. Paul claimed that Banerjee had consistently opposed measures aimed at benefiting the public, such as the Bharatiya Nyaya Sanhita introduced by Prime Minister Modi. She also dismissed the relevance of the Aparajita bill after a tragic incident at R.G. Medical College. Furthermore, Paul suggested that Banerjee would oppose the Work Amendment Bill 2044 and aligned her with other leaders like Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Arvind Kejriwal and Hemant Soren, labeling them as anti-India for opposing the country's interests. Situation that it's going to thrive in. So the more alive it is, the more. So here, when we're what's termed backfilling, we're putting in the soil. We want to make sure that the tree stays nice and erect, as straight as possible, because then it has to. Water and oxygen can be in those roots. So what we want is we're going to add water onto there, so that the water is drenching the soil, and we're going to. But then it's just going to make it that the soil is. Filling any gaps that would otherwise be there, so there's no air gaps, there's no gaps of air that would otherwise dry out the roots of the tree, and it's got a very nice soft medium. Here in this example we have this beautiful Samanya Saman, and Prime Minister to passerbys, to people enjoying the park, so we're going to remove some of those. That helps you ascend up into the tree, and then the rope in the back. There's no risk to maybe buildings or anything else that can be damaged in the process. So see all the climbers and the people on the ground all are wearing helmets to ensure that there is no accidents that happen. In case there's maybe a dead branch that falls, all the climbers and ground workers are. They're not harming the tree in any way. So it will be an honor, sir, to help you to launch an application. की तरफ से हमने आज 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। एक कि ट्री केयर फाउंडेशन की तरफ से जो ट्री की केयर किस तरह से लेने का, उसका प्रूनिंग किस तरह करना चाहिए, वो कार्यक्रम हमने हमारे स्मार्ट सिटी मिशन के थ्रू ट्री केयर फाउंडेशन फ्रॉम द अरबिंदो, इनकी तरफ से वर्कशॉप यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर और द स्टूडेंट फ्रॉम द बॉटनी, इनके लिए आयोजन किया था। और स्मार्ट सिटी मिशन ने अंडर द स्टार्टअप ऐप लॉन्च किया है कि 1000 प्लांट्स हमने जो नए ग्रो किए हैं
इनके बारे में हमेशा के लिए अपडेट रहने के लिए इस तरह का ऐप लॉन्च किया। मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ स्मार्ट सिटी मिशन का। इस तरह का ऐप लॉन्चिंग और ट्री केयर फाउंडेशन साथ के टाइप पेंजिम में हमेशा के लिए ग्रीन और क्लीन सिटी बोल के जानी जाएगी। हमेशा के लिए यहाँ पे बाकी जगह से 2 डिग्री टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। Union Minister Pratap Rao Jadhav discussed the upcoming cabinet meeting and provided insights into the political landscape ahead of the Maharashtra election results. He emphasized that the cabinet meeting would begin on November 26, coinciding with Constitution Day, and conclude on December 25th, the centenary of Atal Bihari Vajpayee birth. He shared that the initiative would focus on testing public awareness, particularly among celebrities and politicians, leveraging social media to reach the wider audience. Regarding the Maharashtra election results, Jadhav confidently predicted a win for the Mahayati alliance, comprising BJP, Shiv Sena and other nationalist parties. He claimed that the alliance would secure a clear majority, with seat expectations ranging between 180 to 200, depending on the election's outcome. He noted that while there were no internal rivalries for the chief minister's position, the alliance leaders would decide the CM, deputy CM roles collectively. वो खुद ही पुलिस मंत्री है, उनको सब कुछ मालूम है। आज 14 साल से वो क्या सो रहे थे? आज जो दुर्नीति पश्चिम बंगाल में हो रहे, वो सबको उनको शी इज पार्ट ऑफ इट, उसमें है, उनका नेतृत्व में हो रहा है, उनको सब मालूम है। लेकिन उनका ये स्वभाव है और मैंने जस्टिफाइड है ये स्वभाव, क्योंकि अभी 14 साल और स्पेशली इन द लास्ट 1 ईयर जिस तरह से मर्डर, जिस तरह से आरजी कौर का केस, माने जनता जनार्दन पश्चिम बंगाल का वो तंग आ चुके हैं। उनको परिवर्तन चाहिए, उनको ममता बनर्जी टीएमसी सरकार को हटाना है। अब नया नाटक क्या? हमको कुछ नहीं मालूम, हम एकदम ऑनेस्ट है, हमारा सादा साड़ी में कोई दाग नहीं है। जो भी कर रहे दुर्नीति, कभी एमएलए एमपी मंत्री के ऊपर दोष लगा दो और अभी पुलिस के ऊपर दोष लगा दो। पुलिस को सब मालूम है। हमारा आसनसोल दक्षिण और आसनसोल जिला में आज दामोदर नदी, अजय नदी से ट्रक के ट्रक बालू, कोयला, पत्थर चोरी हो रहे, मालूम नहीं है पुलिस को। थाना में, हर थाना में मंथली फिक्स किया है। आज सीपी ट्रांसफर किया है। मुझे तो बोलना है कि सीपी को पहले ट्रांसफर करिए, आसनसोल का सीपी को पहले ट्रांसफर होना चाहिए। तो ममता बनर्जी को सब मालूम है और वो मीटिंग में बोल रहे, राजीव, मैं डीआईजी को बोल रहे, तुम नहीं करते हो लेकिन तुम्हारा नीचे का जो है तुम थोड़ा देखो। कौन राजीव को वो बोलता है कि तुम नहीं करते हो? जो राजीव कुमार के ऊपर इतना दुर्नीति का आरोप, लाल डायरी, नील डायरी, ये हम लोग भूले नहीं, जिसके लिए माने अभी भी वो जामीन में, बेल में बाहर है। ये सारा नाटक है। और एक विषय है कि सीआईडी का जो हेड है, हम लोग सुन रहे थे, ये हमारे युवराज अभिषेक बनर्जी का लॉबी का है। अब बनर्जी परिवार में लड़ाई चल रही है, क्षमता किसके हाथ में होगा? ममता बनर्जी का हाथ में कि चला जाएगा अभी अभिषेक बनर्जी का हाथ में? इसको लेकर भी एक लड़ाई कि सीआईडी का जो टॉप है वो अभिषेक का लॉबी है, अभिषेक का लॉबी को हटाओ दो, दूसरे किसी को लाओ। तो ये नाटक, और बंगाल के लोग बुद्धू नहीं बनेगा, हम लोग को पता चल गया है। 14 साल से हम लोग भुगत रहे, बंगाल के लोगों को परिवर्तन चाहिए। देखिए, वो उनके बेनिफिट में जो होता है वो वही वाला करते हैं, व्यवहार करते हैं हर को। पुलिस को जब व्यवहार करना हो पुलिस को व्यवहार करते हैं, जब उनका एमएलए एमपी, उनका मंत्री या उनका कर्मी को व्यवहार करना हो वो करते हैं। कभी महिला को व्यवहार करना हो तो महिला को व्यवहार करते हैं। उनको सिर्फ व्यवहार करके, यूज करके उनको टिश्यू पेपर के जैसा फेंक देना। तो ये ममता बनर्जी का आदत है। पहले जब वो पूरा सा फंस गए और पहला दिन से उनको मालूम चल गया है आरजी कौर, वो खुद ही पुलिस। K.T. Ramarao criticized allegations of financial corruption, stating that money changing hands is not a new issue and has damaged India's international prestige. Referencing a New York court ruling, he also highlighted the financial losses to investors,
particularly in public companies like Adani, defending the Telangana government's achievements under KCR's leadership. He rejected attempts by the BJP, particularly Revanth Reddy, to align with them, asserting that the BRS will not accept BJP terms. उनके सब खान पान होता है, ऋतु दिनचर्या होती है, ऋतुचर्या होती है, उसके बारे के नोटिफिकेशन उनके फोन पे आते रहेंगे। सर ये कब से शुरू हो जाएगा और लगभग कितने समय चलेगा? अभी देखो ये 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और 25 दिसंबर को खत्म होगा। ये 26 नवंबर जो है हमारा संविधान दिवस है, उसके मुहूर्त पे हम उसको शुरू कर रहे हैं और 25 दिसंबर जो है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिन वो आ रहा है, तो उसी दिन इसका समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका एक तरह से उद्घाटन क्या है, इस परीक्षण टेस्ट करने जा रही है या खुद करवाएंगे? नहीं, उन्होंने खुद ही हमको टाइम दिया है, तो हम जाके उनका परीक्षण करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, नेता है या बड़े पद पर जो लोग हैं, उनका परीक्षण करके लोगों में भी अवेयरनेस लाए कि भाई हमने भी करना चाहिए। और ज्यादातर ज्यादा उससे प्रसिद्धि भी हमको मिलेंगे, वो ट्विटर पर डालेंगे, सोशल मीडिया पे उनके माध्यम से जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे लोग इजीली पहुंच जाएंगे। सर कल रिजल्ट आ रहा है महाराष्ट्र का, वो बात नहीं, उम्मीद क्या है? देखो महाराष्ट्र बहुत पॉलिटिकल मैं बाहर देता हूँ, अभी हमारे यही था पॉलिटिकल रहा तो मैं बाहर। महाराष्ट्र के रिजल्ट आने वाले हैं, क्या लगता है कौन होंगे महाराष्ट्र के सीएम? ये देखो कल जो रिजल्ट आने वाले हैं तो निश्चित रूप से महायुति जो है हमारी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी, इनका पूरा बहुमत कल निश्चित रूप से आएगा, अच्छी तरह से बहुमत आएगा। और हमारे जो तीनों नेता है उनका समन्वय भी बहुत अच्छा है। जल्द ही तीनों नेता आपस में बैठकर वहां पर सीएम का नाम भी वो लोग सामने लाएंगे। ऐसी कोई कंपटीशन हमारे महायुति में नहीं है अभी। सर फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या लगता है? नहीं, ठीक है, वो मैंने पहले बोला कि ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है और सभी पक्ष के लोगों को तो लगता है कि मेरे पार्टी का ही सीएम बनना चाहिए, तो साहजिक है कार्यकर्ताओं को ऐसा लगना। लेकिन ये तीनों नेता बैठ के समन्वय से वहां पर सीएम, डिप्टी सीएम जो भी पद मिलना है तो वो तय कर लेंगे और जल्द से जल्द हमारा गवर्नमेंट वहां पर फॉर्म हो जाएगा 27 तारीख के पहले। कितनी सीटें सर उम्मीद है, कितनी सीटें आने जा रही है? अभी जो हमारी जो अंदाजा हमारा लगता है तो 180 से लेके 190-95 तक भी सीट आती है। अगर हमारी लाडली बहना ने कमाल किया हो तो 200 के ऊपर भी जाएंगे। उनके सब खान पान होता है, ऋतु दिनचर्या होती है, ऋतुचर्या होती है, उसके बारे के नोटिफिकेशन उनके फोन पे आते रहेंगे। सर ये कब से शुरू हो जाएगा और लगभग कितने समय चलेगा? अभी देखो ये 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और 25 दिसंबर को खत्म होगा। ये 26 नवंबर जो है हमारा संविधान दिवस है, उसके मुहूर्त पे हम उसको शुरू कर रहे हैं और 25 दिसंबर जो है तो That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English.